जी बच्चों, लेट्स सी जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The old man took his son to the top of the mountain to show him the coloring. He had cultivated potatoes, yams, and tomatoes there. ठीक है। The old man grew potatoes, yams, and tomatoes on his farm. They had special taste because क्या था जी? Because of the rich land. The viewpoint of the parents of Gorgias was that opportunity was also needed for success, along with determination. But Gorgias thought that only determination was needed. ठीक हो गया। There were red and golden curtains hung along the walls. The courtroom had been changed into a gymnasium. The swings were hung along the ceiling. The hurdles were arranged on the polished floor. जी उसके बाद है जी, the neat and clean floor. The uniform of Gorgias had been specially prepared. Gorgias was feeling happy because he had achieved his goal. However, he was also sad because he couldn't perform any actual activity. No, Gorgias didn't use any shortcut. He remained stuck to his ambition, joined politics, and worked hard to achieve his goal. ऐसा आप याद करके लिखती है पहले, फिर अटेम्प्ट करती है? नहीं सर, वो जो साथ साथ पेपर्स हुए थे तभी याद किया था, मतलब अभी जो होते हैं, अभी जो हो रहे हैं नहीं, आप याद किए बगैर लिखे ना, जिस तरह से आपके सामने ना फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है। ठीक नहीं है, सर, ये नहीं। अब तो याद किए बगैर लिख रहे हैं, लेकिन जो छुट्टियों में पेपर हुए हैं तब तो किया है ना साथ साथ। ठीक हो गया। वो आप इस तरह से हमारी ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी ना, तो फिर आप नेचुरल वो गलतियां जो आपने कल को करनी है, आपने एग्जाम में जाके, अल्लाह ना करे, तो वो हमारी गलतियां अभी से ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं ना, या आपके अंदर याद किया होता है उसको लिखते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। सारे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। No, Norma was not normal on hearing the news of the accident. She was shocked. She lost her senses for some time. लिखते हैं साथ, she couldn't walk and breathe. हो गया। Yes, Norma was very selfish. She had high aims to improve her living standards. She was a greedy woman. ठीक हो गया। The impression of the girl about the second man is that he is a wicked man. और बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, he is a wicked भी लगाया जा सकता है। चल बार ठीक है, वैसे गलत नहीं है। She considered him the killer who is following her. ठीक हो गया। The girl was 8 miles away from her home. She was coming from her friend's home. She had been at a party there. The girl was not willing to go with the second man because she considered him क्या होगा, wicked person. She thought that he was the killer who was following her. उसके बाद General Parr asked Aide to go down and look after the ship. He asked him to be careful and not to touch it. He ordered him not to allow anybody to come near it. ठीक हो गया। Creighton secured his ship by Creighton secured his ship by setting its doors and making an invisible wall around it. उसके बाद है the main idea of the poem Hollow Man is that we should lead a meaningful and purposeful life. Spiritual emptiness makes our potential paralyzed. ठीक है। Modern man has been called hollow man. He is spiritually void. His actions are meaningless. Stuffed man was a man. ज्यादा बेहतर है 10 stuffed man लगा लें, क्योंकि adjective के साथ ही specific हो जाएगा। The stuffed man was a man whose mind is filled. ये कैसे बनाया, क्या गलत है? Whose mind was filled होगा। और उसके बाद with useless thoughts, he lacked wisdom. His ideas were meaningless. His ideas, yeah, his actions and ideas were meaningless. The cherry is growing in the woodland. It is loaded with white flowers. It looks very beautiful. ठीक है। Woodland, right, means the path in the forest. The forest, yeah, toward the forest. Path क्या होगा? Yeah, चलो in the forest.
ये लिख सकते हैं on which the poet is taking his right. The cherry tree is growing in the woodland. It looks very beautiful. ठीक हो गया जी. Personification is to give human attributes to inanimate objects. The cherry tree has been personified. It is wearing white dress as people do. और किसी ने भेजा? हाँ भी. ये वाली देख ली थी आपने असेसमेंट? हाँ बच्चों, मेरे को कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? No, yes. जी. तो इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें एक ऑप्शन था आपने पढ़ा ही नहीं है मेरा ख्याल है. ये गलत था, आपने बताया नहीं है, आपने प्रेफर करते नहीं है. वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वुड डाई होगा. ये साइड में था. हो गया जी. जी और किसका पेपर है जी? केवल अंदर पेपर किया हुआ किसी ने? हेलो, ओके, किसी ने नहीं किया हुआ आई थिंक. चले मैं जरा फिर खोलता हूँ. आपको ये सारी स्क्रीन नजर आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? हाँ भी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज. ओके, ये मेरी सारी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर, सिर्फ पेपर नजर आ रहा है. ठीक हो गया जी. अब ये स्क्रीन नजर आ गई पेपर वाली, पास पेपर वाली? यस, आ गई है. ओके, चलें जी. 2 पेपर हमारे हो चुके हैं फैसलाबाद बोर्ड के. अभी हम तीसरे पेपर पे जाएंगे. अच्छा जी, आपने कल क्या करना है, आपने कि तीनों पेपर की जो आपको अभी तक मिले हैं, तीनों पेपर की ट्रांसलेशन करनी है जी आपने. ठीक है, वो चेक करनी. क्लियर हो गया? ओके सर, ठीक तीनों है सर. पेपर्स की ट्रांसलेशन करनी है ताकि उसमें पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो हम कर लेंगे. लेट्स सी जी, नेक्स्ट पेपर है जी हमारा आर्थर लुक द स्टोन्डेड. स्टोन्डेड का बताइए क्या होगा? स्टंट. स्टंट होगा. शाबाश, हक्का बक्का होगा. गुड. ब्लफ क्या होगा जी? क्लिफ. क्लिफ का चट्टान को कहते हैं. वर्लवे. रस्ट. रस्ट होगा. उसके बाद है ड्रैग्ड. पुल्ड. पुल्ड होगा. पेजेंट. फार्मर. फार्मर. स्केयर्ड. फ्राइटेंड. ब्राइटन. वॉशेस अप. इजेक्ट्स. इजेक्ट, बाहर फेंकना. लाइवली गर्ल. एनर्जेटिक. वेस्टफुल. ruined. ब्रीदिंग इज लास्ट. Dying. क्या होगा? डाइंग होगा जी. डाइंग. उसके बाद आगे बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? It was hot. इट वॉज क्या होगा? Hot. मौसम कैसा था? हॉट था. Where did Harry and his family had land? कहाँ पे लैंड करते हैं? The Mars. The Mars पे. Name of woman क्या था? Thank you मैम. Miss Leila Bates Washington जी. टेबल ऑप्शन है. हीट लाइटरिंग में गर्ल की एज क्या थी? ये एज आ जाती है. 23. दो याद रखना है, एक ड्रामे में एज है और एक जो है उसमें है. दोनों प्ले में है. दोनों प्ले में ही है.
हाँ दोनों एक प्लेयर में ऑयस्टर है। इन द पर्ल में और एक हाँ हीट ठीक, लाइटिंग में। नहीं ऑयस्टर पर्ल नहीं, उसमें है क्या नाम है सेकंड वाले में। एलन, हाँ विजिट टू सेकंड वाले में, अ एलन स्मॉल वाले में। प्लैनेट। जी। उसके बाद वेयर डज स्पिल्डिंग लिव? अभी मैरीलैंड। मैरीलैंड, मैरीलैंड। शाबाश। डू यू नो व्हाई एन एप्पल फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों लगाना? फॉल्स क्योंकि फॉल्स ये क्यों लगा? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है, एप्पल फॉल्स डाउन। एप्पल्स का ये बिहेवियर जो है वो यूनिवर्सल है, तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद है उसके बाद अगला है जी, अगला क्या होगा? गिव्स। गिव्स नहीं, गिव्स हो गया, गिव्स हो गया। उसके बाद ड्रिंक प्योर अल्कोहल। हैव यू एवर ड्रंक, नहीं हैव यू एवर ड्रंक हाँ होगा। हैव यू एवर ड्रंक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो हैव के साथ होगा, और एवर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? परफेक्ट टेंस लगाएंगे। हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर ड्रंक। शी मीट क्या होगा? डिड नॉट मीट मी। डिड नॉट मीट, क्यों? क्योंकि लास्ट मंथ आ गया, तो ये हम लोग पास्ट में लगाएंगे। जी अच्छा। उसके बाद है, उसके बाद अगला है जी, शी रिफ्यूज टू हेल्प मी। हैज ऑलवेज रिफ्यूज्ड। हैज ऑलवेज रिफ्यूज्ड। ही ऑलवेज, हैज ऑलवेज हैज ऑलवेज, ए रिफ्यूज्ड। वाला ऑप्शन। जी ए वाला ऑप्शन है, हैज ऑलवेज रिफ्यूज्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जी आपने बताना है मैसेज नोमा ने क्या रिसीव किया। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आप खुद करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है, या आप किसी की भी प्रॉब्लम एक दफा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हम सिर्फ जो है ना उसका सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ जो ना उसके पॉइंट्स जो ना वो इंडिकेट करेंगे, यानी कि पॉइंट्स को आप समझ आ जाएगी, तो इस पॉइंट्स की मदद से हम जो है वो बाद में आप खुद सेंटेंस बनाना है, यानी हम मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। रिसीव क्या था जी, क्या मैसेज रिसीव किया था? आर्थर का एक्सीडेंट हो गया था। आर्थर का एक्सीडेंट हो गया था, कहाँ पे? सबवे एक्सीडेंट हुआ था, और किसी ने उसे धक्का दे दिया था। किसी ने उसको धक्का दे दिया था, शॉविंग क्राउड में धक्का दे दिया था। जी पॉइंट क्लियर हो गया जी। उसके बाद है कंडीशन ऑफ द हाउस क्या थी बिटवीन फैमिली, कैसी कंडीशन थी? आपने चैप्टर नंबर 3 में आपने देखना है क्या कंडीशन थी उसकी। शाबाश। कम ऑन। क्या थी उसके पेंट की, क्या हालत थी उसके घर की, जो उनका घर था बिटरिंग फैमिली का, पेंट क्या था? उखड़ा हुआ था, पेल्ड था। उसके बाद बोर्ड क्या हालत थी उनकी, वो क्या होगा, उनकी डी शेप्ड हो गए थे, डिस्टॉर्टेड थे। और उसके बाद तीसरा, शाबाश, हाँ बोले, तीसरा क्या था? वो किसी तरह से भी अर्थमैन का घर नहीं देखता था जी। उसके बाद नेचर ऑफ वुमन जॉब क्या थी? लेट नाइट, रात देर तक वो काम करती थी उधर। नहीं, रात देर काम क्या करती? होटल ब्यूटी शॉप। होटल ब्यूटी शॉप में काम करती थी, जो कि रात देर तक खुली रहती थी। खुला रहता था। ठीक हो गया। और उसके बाद है जी, बनाना ने क्यों यूज किया उसको, पिकिंग अप द लास्ट लॉक को? क्योंकि उसने बेड को छुटाते हुए देखा था, और इसे लगा कि वो लॉस्ट उसने
पॉकेट बुक उठाई है। जी पॉकेट बुक उठाई, उसने कुछ उठाते हुए देखा तो उसने क्या समझा कि ये पॉकेट बुक उठाई है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रीज, कंडीशन क्या थी ट्रीज? वो लोकस से भरे हुए थे और बेंट थे, जी लोकस से भरे हुए थे और बेंट थे, और उनके जो ब्रांचेस और लीव्स थे वो मतलब के सारे उन्होंने खा लिए थे लोकस। जी वो लोकस लोडेड थे और जो है ना वो क्या होगा, लोडेड थे, झुके हुए थे बोझ की वजह से, और उनकी शाखें भी टूट रही थी, ये भी आप लिख सकते हैं उसमें। उसके बाद डेला ने बाल अपने क्यों बेच दिए? क्योंकि डेला अपने हस्बैंड जिम के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती थी क्रिसमस पे, और उसके उसके पास पास पैसे नहीं। इसके पास पैसे पैसे नहीं। नहीं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड, क्या वक्त था? 11 o'clock at night. 11 नाइट o'clock था। एट नाइट है, और वो कहाँ से आ रही थी? होटल 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 ब्यूटी शॉप beauty से shop वापस आ रही थी। उसके बाद है हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन वायरस बी, कैसे डेंजरस हो से। सकता है? बहुत ज्यादा डेंजरस है ये, बहुत सारे- ह्यूमन को फिजिकली और मेंटली बोथ तरह इफेक्ट कर सकता है। शाबाश। और उनकी और पर्सन की मेमोरी रेज कर सकता है। मेमोरी रेज कर सकता है और फिजिकली चेंज कर सकता है, दो चीजें याद रखनी है। और आप मार्शियन वायरस है जी। उसके बाद है अच्छा, उसके बाद है जी हाउ मच डेंजरस हो गया जी। हाउ डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ, व्हाई डिड सॉरी क्योंकि व्हाई वो डिड द क्योंकि वो बीमार था वो और बीमार था, और वो सीधा माउंटेन को क्लाइम नहीं था कर सकता, इसीलिए उसने लॉन्गर और इजियर पाथ बनाए ताकि जो अपनी क्लाइंबिंग है उसको एफर्टलेस बना सके और इजीली वो क्लाइम कर सके। अगली और लेकिन दफा, जब वो अभी अगला हिस्सा है जब असल में, इसका जो सवाल पूछा है ये नेक्स्ट हिस्सा है उसका, कि जब उसकी क्या जब होगी, सेहत वो बेहतर से होगी। जब होता रहा बेहतर होगी, हाँ, तो वो उसने स्टीप पाथ बनाए और ताकि इससे उसे ये पता चलता रहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, शाबाश। उसके बाद है क्रेटन अपने प्रूव एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे करता है उसको, एबिलिटीज को? इनविजिबल शीट बना के अपने उसके ऊपर, स्पेसशिप के ऊपर। और ह्यूमंस के माइंड को रीड करके, ह्यूमन माइंड को रीड करके, उसके अलावा इनविजिबल वॉल बना के, और अच्छा उसके बाद जो है ना वो क्या होगा, वो उसके बाद क्या होगा उसके बाद, कौन सा पॉइंट था? स्पेसशिप कैसे कि बिना किसी कंट्रोलर के वो चलती थी। हाँ वो जो ना वो उसने प्रूव करके अपने आप क्या फ्लाई कार में, उसमें फ्लाइंग कार में उड़ के जो ना उसने अपना क्या किया, उसने क्या नाम प्रूव किया। अच्छा, पर्पस ऑफ क्रेटन विजिट क्या है, क्या था? ह्यूमन ह्यूमन को सिविलाइजेशन को स्टडी स्टडी करना करना ह्यूमन चाहता था सिविलाइजेशन और को स्टडी करना, ह्यूमन इमोशंस के बारे उसको में, चेंज करना। जी ह्यूमन इमोशंस को क्या करना, मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड था, वो उनको मतलब देखना चाहता था। जी शाबाश। और उसके अलावा जी ये हो गया उसका प्रूव करना, उसका पर्पस था। और दुनिया के जो ना वो निजाम को क्या करना, टेक ओवर करना। हैरीज फिलोसफी क्या थी? टू टेक इट इजी। टेक इट इजी। और इसका क्या फायदा है, मेरा क्या भी छोड़ लाती है? दिया। कौन सा? सेटिस्फेक्शन आती है जिंदगी में हाउ happiness। हाँ, इम्प्रेसिव। मॉरल्स कैसे इम्प्रेसिव थे जी उसके मॉरल्स, क्या था वो? वो मतलब अर्थ को भलाई के लिए चेंज करना चाहता था, अच्छी तरह अच्छा बेहतर करना चाहता था। पीस लविंग था, पीस लविंग अर्थ था, को और अर्थ को एक पीस सेंटर ऑफ पीस बनाना चाहता था। उसके अलावा और
वो ह्यूमंस की सारी क्वालिटीज जो है वो सिर्फ उसमें नहीं थी, जैसे ग्रीड यानी कि और हेट। वो हार्म नहीं पहुंचाता, क्या होगा किसके बावजूद, वो ताकत के बावजूद भी वो हार्म नहीं पहुंचाता था। ठीक हो गया। उसके बाद है कि व्हाट इज हैरीज हो गया, ये पहले भी सवाल हुआ है, अभी डिस्कस किया था। व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेस फादर, क्लेस फादर को क्या होता है? वो पुअर मैन था और वो अपनी फैमिली को मतलब नहीं था चला सकता, उसकी देखभाल नहीं था कर सकता। हाँ, तो इसलिए वो क्या करता इसलिए है, दिन दीवार इनफ और दीवार इनफ लिख पे देता है, एनफ लिखता है इनफ लिख देता है और और किसी को बताए बगैर वहां से चला घर जाता छोड़ है। देता है। जी, व्हाई डज क्लार्क लेरबी रिटर्न, क्या क्यों वो वापस आता है? क्योंकि वो क्लार्क ऐड लेरबी करता प्ले है जो नंबर दी 3 हुई में, जो क्ले ने ऐड दी हुई थी न्यूज़पेपर में, वो वो पढ़ता है तो इसलिए न्यूज़पेपर द गर्ल में एड्स को पढ़ता है जिसमें उसके बेटे ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी, और इसलिए वो वापस आ जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है हैरी उसके बाद सी के लोगों को कैसे डिस्क्राइब करता है? वो बहुत पुअर हैं और हाँ। उनके पास उनमें से कुछ के पास जॉब्स हैं और कुछ को पेंशन मिलती है, और हर एक के घर में हैंड्स और जिनके वो अंडे वेजिटेबल्स और एग्स वगैरह वो बेच के अपना गुजारा करते हैं, बेच के अपना गुजारा करते हैं। शाबाश। उसके बाद है जी हाउ डैमेजिंग इज वायलेंस इन लाइफ, ये वायलेंस जो है वो जिंदगी में कैसे डैमेजिंग है? ये जिंदगी के मतलब सुकून को खत्म कर देती है और मेंटल सेटिस्फेक्शन को खत्म कर देती है, जो क्रिएटिविटी को भी उसको खत्म खत्म कर कर देती है। देती है। उसके बाद है हाउ डू आवर साउंड लुक लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट हॉलो मैन, हमारी साउंड कैसे दिखती है जी? विस्परिंग है, और किस तरह से आवाज है, वो दो मिसालें उसने दी थी। जैसे वो जैसे क्या खुशगास में होता से है, गुजरी होती है, कुछ गाछ में से हवा गुजरी चलती होती है, है और टूटे हुए ग्लास के पीछे ब्रोकन ग्लास पर से क्या कौन चलता है, के रैट चलेंगे। चलता है, रैट के चलने की आवाज आती है। व्हाट इज इफ फुल ऑफ केयर अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्या होगा अगर पोएट के मुताबिक लाइफ जो है फुल ऑफ केयर है? कि मुश्किलात ही मुश्किलात है जिंदगी में। कौन आखिरी शेर है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड शेयर अ पुअर लाइफ इफ इट इज फुल ऑफ केयर। तो क्या है, ये पुअर लाइफ है। ठीक है, क्या होगा, इफ लाइफ इज फुल ऑफ केयर, क्या है इसका, इट इज अ पुअर लाइफ, इट इज अ पुअर लाइफ। और क्या है उसके अलावा, पुअर लाइफ, और उसके अलावा क्यों पुअर लाइफ है, क्योंकि इंसान के पास सारी चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, वक्त नहीं है उसके लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये मेरी बेटी रीत भी साथ में सुन रही है। अच्छा, उसके बाद है जी what has the Japanese done out of the ashes according to the poet of the tale of the cities, जापानीज ने क्या निकाला एशेस में से, क्या क्रिएट किया उन्होंने एशेस में से? उन्होंने उस मुश्किल डे को की मुश्किलात को बर्दाश्त किया और एशेस में से ग्रेट लोग पैदा हुए। ठीक हो गया, क्या किया उन्होंने, दो सेंटेंसेस होंगे कि उस बोर दा क्या होगा, ब्लैक डे, क्या वो शेर इस्तेमाल करता है, बोर द ब्लैक डे, उसको क्या किया, उस मुश्किल दिन को बर्दाश्त किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा क्या किया, वो दे इमर्ज एज अ ग्रेट, वो ग्रेट जो है वो ग्रेट नेशन के तौर पे इमर्ज हुए। उसके बाद थीम ऑफ द टाइम पोएम क्या है? हर चीज का एक स्पेसिफिक वक्त होता है, मरना जीना खुशी गम ये सब कुछ अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर होता है। जी, और हर चीज का वक्त मुकर्रर है।
हर चीज का टाइम स्पेसिफिक है, तो उसलिए इंसान को टाइम की कदर भी करनी अपनी चाहिए लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, टाइम और उस टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। ठीक हो गया एंजॉय जी। भी करना चाहिए। उसके बाद है हाउ डू द फ्रूट लुक लाइक एज अ ट्रीट अ फ्रूट स्टॉल, कैसे देखते हैं? कैनन Look like बॉल्स, cannons, कैनन बॉल्स की तरह। बिकॉज तो क्या होगा? क्योंकि वो pyramid शेप में अरेंज थे pyramid इसलिए। shape में। जी क्या होगा? फ्रूट्स लुक लाइक क्या होगा? कैनन फ्रूट लुक Cannonballs, लाइक कैनन बॉल्स। और कैसी शेप में दिखते हैं? दे आर इन कैनन बॉल्स। उसके बाद है जी व्हाट हैपेंस इन द फार्म व्हेन द नाइट मेल पासेस बाय इट, क्या होता है जब उसके पास से गुजरती है? वो किसी को डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल करती, बस खामोशी जो रहती है, और बस जब जग पड़ा हो तो साइड एक में वो जग जो है वो slightly करता है। बेडरूम में वो मतलब शेक सिर्फ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करती है। जी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करते हैं। शाबाश। ये तो हो गया जी इसके पोर्शन। और अब ट्रांसलेशन आप देख लें इसमें से जरा, जो आपके सामने है कोई मुश्किल चीज है तो आप, मेरा ख्याल है इसमें आपने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसके बाद पंक्चुएशन है, स्टेंजा है, ये तो करने वाला है, और आपने ये जरा कौन करेगा जी ट्रांसलेशन? शाबाश। जी ट्रांसलेशन करेगा जी कोई? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? जी बच्चों, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो? जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी कोई करेगा जी ट्रांसलेशन इसकी? कोई नहीं करेगा? रीत भी कह रही है, लगता है किसी को नहीं आती। जी भाई, चलें फिर ये पेपर जो ना आपने करना है, ठीक हो गया। ये पेपर आपने कल जो ना वो ट्रांसलेशन लिखनी है आपने तीनों पेपर्स की, और साथ में जितना पेपर हो सके ये पेपर करना है ताकि हम उसको भी शेयर कर लेंगे। और कल और परसों हम फिर मतलब यानी मंडे को और ट्यूसडे को ये पेपर हम डिस्कस करेंगे, और पिछले पेपर्स की ट्रांसलेशन जो रहती है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ भाई, सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो? चलें जी, अल्लाह हाफिज।